Very good afternoon to everybody. I would like to thank him to invite me over here. Generally I talk very less. But as this is a talk, I'm supposed to talk. So I would narrate few incidents from my life because अभी at this point of time, अभी इस stage पे life पे, I feel I have to achieve that importance जिसके बारे में I can address the huge gathering. So before talking about myself, I was going through the topic minds wide open. This is very intense topic if we talk about it. क्योंकि जब यूपीएससी की हम तैयारी करते हैं, let me introduce myself. I am basically belong to लुधियाना, पंजाब, and I am a dentist. और हम दोनों भाई, we are two real brothers. I am a dentist. He is a medico. He is MBBS. उसके बाद में under the able guidance of my father, my parents, I got into the police services. और छोटे भाई को he got into IAS. He is also posted in UP. So there is a saying. I was just searching about the topic minds wide open. So I was sitting with somebody very elder. तो उनके एक दिन मैं स्पीच सुन रहा था तो मैं उनसे कहा कि सर ये टॉपिक इन्होंने दिया, दिस इट लुक्स वेरी इंटेंस. दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं आई जनरली स्पीक ऑन द स्पॉट, आई डोंट सर्च. और ये टॉपिक ऐसा था कि आई ट्राई टू सर्च. तो एक कोट मेरे सामने आई फ्रॉम आवर वेदास. दैट कोट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर. आनो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वतः. इट मीन्स अच्छे विचार कहीं से भी आए उनको आने देना चाहिए. That can be from your colleague, that can be from your subordinate, that can be from your senior, that can be from anybody. तो ये एक बहुत बेसिक फिलॉसफी होनी चाहिए लाइफ की कि अगर अच्छे विचार कहीं से आ रहे हैं तो उनको आने देना चाहिए. एंड जो ओपननेस है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं जानते. देयर इज अ पर्सन, अ राइटर, पोइट known as शिव कुमार बटालवी. आप जाएं, आप देखेंगे. There is a character in our history, our mythology. Her name is Luna. This is the story of Puran Bhagat. That the lady Luna has been picturized as a villain in all the stories you will find. But that person Shiv Kumar Batalvi, he mentioned her agony and he portrayed the actual picture, and that is the only one script where you will find her in a positive role. And he was the youngest one to win Sahitya Academy Award. So this is how the thinking makes the things different. Now there is only one comparison I would make. शायद बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि एक आचार्य के बेटे को जब दूध नहीं मिला, जब उसने दूध मांगा अपनी माँ से और उसकी माँ ने उसको आटे में पानी घोल करके पिला दिया, दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ महाभारत. जब एक आचार्य के बेटे को दूध नहीं मिला, उस कारण से महाभारत हुई. और जब एक इसी तरह से एबल स्टूडेंट को उसके टीचर ने उसके मेस की फीस जमा की तो आत्माराम जैसे केमिस्ट्री के साइंटिस्ट पैदा हुए. तो दिस इज हाउ द थिंग्स गेट डिफरेंट. नाउ आई वुड लाइक टू कम ऑन माई सेल्फ. आई हैड अ गुड एकेडमी बैकग्राउंड. My father has been a lecturer. तो जो एक टीचर के घर में माहौल होता है वही माहौल हमारे घर में था. उन्होंने जिस तरह से प्लान किया था कि मुझे अपने बेटे को पहले एकेडमिक्स में सक्सेसफुल बनाना है, उसके बाद एक अच्छा प्रोफेशनल बनाना है, उसके बाद आगे का फिर प्लान होगा. तो उसी तरह से आई वॉज टॉपर ऑफ द स्टेट इन मैट्रिक.
दैट वॉज फर्स्ट टाइम जब किसी ने सुना, इवन मैंने भी फर्स्ट टाइम मैंने सुना कि 10th क्लास में इंग्लिश मैथ साइंस तीनों में 100/100 मार्क्स आ गए मेरे. Then I was selected for CPYLS program that was for the Youth Leadership in Sciences by the CSIR, Council for Scientific and Industrial Research, Institute of Microbial Technologies in Chandigarh. I was invited. Then I got to meet Dr. Craig Venter, who had worked on genome. That was very encouraging and enriching for me. I was quite motivated to become a scientist. और 10th क्लास का एक बच्चा तो ये सोच रहा था कि मुझे साइंटिस्ट बनना है. अल्टीमेटली इट टुक मी टू द मेडिकल स्ट्रीम इन +1 +2. देन क्लियर्ड दिस एग्जाम्स एंड उसके बाद में हम डेंटिस्ट्री में आ गए. देन same continued in 12th also. I was topper in the district. I was topper in the medical stream in the state. In college also. It was good. It was, everything was good. First time I'm sharing it with anybody. जो अभी मैं incident narrate करूँगा. I generally don't talk about it. Oral. I wanted to be an oral and maxillofacial surgeon. That was my favorite subject. जब भी शायद एग्जाम हुआ होगा, I don't think कि कभी मेरे अगर 15 का है, 20 का है, 50 का है, I didn't. कभी उसमें से 100 में 100% से कम मार्क्स नहीं आए. फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हुआ. फाइनल ईयर में हमारा सब्जेक्ट था. फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हुआ. इट वेंट टू वेल. रिजल्ट आया 28 जून 2016 में. एंड टू माई सरप्राइज आई फेल्ड इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी. दैट वाज माई फेवरेट, मतलब टॉप मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट. आई वांटेड टू डू द पोस्ट ग्रेजुएशन इन दैट सब्जेक्ट. एंड देन आई हैड प्लान्ड एवरीथिंग. आई विल डू दिस कोर्स एंड दैट कोर्स. आई विल बिकम अ प्लास्टिक सर्जन एंड ऑल. पेरेंट्स भी और मैं भी कॉन्फिडेंट था कि भैया रिटर्न में तो तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है. एंड दैट वाज ट्रू ऑल्सो. जब मैं, इट वाज वेरी शॉकिंग. ऑन द स्पॉट आई वाज नम कंप्लीटली. और आई वेंट टू फाइंड आउट द स्टेटस इन द यूनिवर्सिटी इन फरीदकोट इन पंजाब. देन आई गॉट टू नो दैट आई हैव स्कोर्ड 82 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन रिटन एंड आई हैव स्कोर्ड 35 आउट ऑफ 100 इन प्रैक्टिकल्स. It was shocking. The person जिससे मैंने पूछा कि कितने मार्क्स हैं जो क्लरिकल उस पर थे यूनिवर्सिटी में, he told कि भाई तुम्हारी टीचर से कोई पंगा है क्या? तो I was like नहीं यार, पंगा तो मेरा किसी से भी नहीं आया. I'm very respectful. He was like कि भाई तुम्हारे तो, उसने मार्क्स देखे रिटर्न में हर सब्जेक्ट में. इस तरह से किसी एक आध में हो तो बंदा एक्सेप्शनल होता है, बट हर किसी में 100 में से 80, 82, 85 इस तरह से. उसके बाद धीरे धीरे एक्सप्लोर किया तो जो एग्जामिनर थे, दे फॉरगॉट टू ऐड 45 मार्क्स ऑफ माय वाइवा. दे फॉरगॉट टू ऐड. अदरवाइज आई हैड स्कोर्ड 80 आउट ऑफ 100 इन प्रैक्टिकल्स ऑल्सो. दैट वाज वेरी शॉकिंग. एक पढ़ने वाला बच्चा जो कभी जिंदगी में फेल होना तो दूर, कभी थर्ड से नीचे कभी सोचा नहीं है, उसके साथ ऐसा हो जाए. दैट वाज वेरी शॉकिंग. दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ. 6 महीने की बैक होगी. हमारे जो डेंटिस्ट्री में या मेडिकल में अगर एक सब्जेक्ट में 3rd ईयर तक सप्लीमेंट्री आती है तो उसमें बैक नहीं लगती, बट फाइनल ईयर में अगर एक भी सब्जेक्ट में आती है तो उसमें 6 महीने की बैक लगती है. दैट वॉज वेरी 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 शॉकिंग फॉर मी. फॉर 6 मंथ जो मैंने स्पेंड किए. और दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट व्हेन आई थॉट आई हैव टू लीव दिस फील्ड. आई हैव टू गेट इनटू द सिविल सर्विसेज. हर कोई मुझसे पूछता है क्यों सिविल सर्विस. आई डोंट टेल एनीबॉडी. आज पहली बार मैं बता रहा हूँ कि व्हाई आई एम इनटू द सिविल सर्विसेज. दिस इज़ वाई आई एम इनटू द सिविल सर्विसेज. क्योंकि हमारे सिस्टम में रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है. चीज़ें उतनी सही नहीं हैं जितनी होनी चाहिए. जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए बहुत शौक है. एंड दिट इज़ वाई आई नो व्हाट इनजस्टिस इज़. दैट इज़ वाई आई ट्राई कि मेरे कलम से कभी किसी के साथ इनजस्टिस ना हो. दिस इज़ वाई आई ट्राई. दिस इज़ द फर्स्ट इंसिडेंट व्हेन आई गॉट इनटू द सिविल सर्विसेज. I thought of preparing for the civil services. I started preparing for it. और उसके बाद में आप जब सिविल सर्विस प्रिपरेशन करते हैं, दिस इज ऑलमोस्ट 1.5 year ड्यूरेशन का ये एग्जाम होता है. नेट पे सर्च किया सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, दिस इज मदर ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन. इट इज रिटन. बंदा जो आधे अधूरे मन से तैयारी करते हैं वो तभी वापस मुड़ जाते हैं कि रहने दो इसको. देन
in the midterm, I changed many optionals. I changed 9 optionals. Very shocking for generally कोई जो तैयारी करता है. I changed 9 optionals. I took statistics, I took chemistry, I took zoology. तो इस तरह से करके लिटरेचर, सोशियोलॉजी, पंजाबी लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, I changed 9 optionals. उस समय 2 ऑप्शनल होते थे, अब 1 हो गया है. I changed one optional to another, another to another. फिर then I realized कि भाई I have to change one. लास्ट टाइम मैंने सोचा ऑप्शनल चेंज करना है. उतनी देर में मेरा हरियाणा का प्रीलिमिनरी क्लियर हो चुका था, मेंस आ चुका था, और उधर से मेरा यूपीएससी का प्री क्लियर हो चुका था. मुझे उसका फॉर्म भरना था. तो हरियाणा के मेंस एग्जामिनेशन के लिए स्टार्ट होने वाला था 10-12 दिन के अंदर, और यूपीएससी का फॉर्म भरना था 15-20 दिन के अंदर. एंड आई वॉज थिंकिंग अबाउट चेंजिंग द ऑप्शनल फॉर यूपीएससी. और हरियाणा में तो भर चुके थे, उसको जोलॉजी से अपीयर होना ही होना था. ऑप्शनल चेंज करने के लिए, बिकॉज आई वॉज डिटर्मिन्ड कि मुझे यूपीएससी करना है स्टेट्स, उसमें आई वॉज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड. आई वेंट टू अ गुड टीचर ऑफ दैट सब्जेक्ट. मैं गया वहाँ पे, आई शेयर्ड विद हिम कि सर मुझे ऑप्शनल चेंज करना है, आई एम थिंकिंग ऑफ चेंजिंग द ऑप्शनल, और आप मुझे कितनी देर में करा सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम आने में 2-2.5 महीने रह गए थे मेंस एग्जाम में. उनके शब्द ये थे दैट यू आर ऑन अ सुसाइडल पाथ. लेकिन हाँ, मैं एक बात कहता हूँ, आप ले लो, इस बार तो आपका होना नहीं है, वो तो आप इंश्योर कर लीजिए, लेकिन अगली बार आपका मैं गारंटी देता हूँ ये सब्जेक्ट तो मैं निकाल दूंगा. इट वॉज वेरी वेरी शॉकिंग. स्टेट ऑफ शॉक मुझे नहीं पता लगा, वो मेरे घर से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे था जो इंस्टीट्यूट था. मुझे पता नहीं लगा, मैं 6-7 किलोमीटर का पैदल चल के घर पे आ गया. आई फॉरगॉट माई बाइक ओवर देयर. इतनी स्ट्रेस थी दिमाग में. आई केम होम, आई शेयर्ड इट विद माई पेरेंट्स. तो एक दो लाइन सिर्फ फादर की ये थी, जब मैंने शेयर किया, उन्होंने ये कहा कि वो टीचर तुम्हें 3 या 4 मिनट के लिए जानता है, और मैं तो ये 23 साल से जानता हूँ, तो ले तो कर लेगा. और मेरा हो गया. आई टॉक टू वन ऑफ द पर्सन हु हैड अचीव्ड 3rd रैंक ऑल ओवर इंडिया. उनसे भी मैंने बात करी. वो लाइक होगा नहीं इस साल, अगली बार तैयारी कर. बट वो शायद फादर की 3 वर्ड्स की एक लाइन थी जो कि हो गया. सिविल सर्विसेज हो गया. एंड तो आई वुड लाइक टू, क्योंकि जो टॉपिक है उसी पे बेस्ड, आई वुड लाइक टू रेट 1 or 2 केसेस. मथुरा में आई वॉज पोस्टेड एज ASP. ASP इज क्वाइट ए यंगर पोस्टिंग. जब हम ज्वाइन करते हैं, पहले वी आर ASP अंडर ट्रेनिंग, देन वी गेट इनटू रेगुलर ASP शिप. आई वॉज ASP. देयर वाज अ केस ऑफ ब्लाइंड गैंग रेप. एक बच्ची थी 14-15 साल की, उसके साथ में 6 लड़कों ने दे रेप्ड हर, एंड दैट वाज कंप्लीटली अननोन. शी डिडंट नो देम, कहाँ से आए, कौन थे. किसी और एरिया में वो हुआ था. आई वॉज कॉल्ड, माई SSP, ही कॉल्ड मी अलॉन्ग, क्योंकि माना जाता था कि हाँ भाई लड़के का काम क्राइम पे अच्छा है. आई विजिटेड द क्राइम सीन. मैंने यही कहा कि सर क्राइम सीन विजिट करते हैं. आई विजिटेड द क्राइम सीन. तो वो एक मतलब बिल्डिंग सी थी जहाँ पे कोई रह नहीं रहा था, खंडर टाइप की. शी हैड कम देयर विद हर फ्रेंड, और वहीं पे 5-6 लड़के आए जिन्होंने दे कमिटेड दिस इंसिडेंट. क्राइम सीन को हमने देखा, सोचा, 2-3 घंटे लगाए. तो जनरली अलग तरीके रहते हैं वर्कआउट के, केस को वर्कआउट करने के. देयर वाज ह्यूज प्रेशर टू वर्क आउट द केस बिकॉज इट वाज ऑल इन मीडिया. व्हेन आई विजिटेड देयर, आई स्पेंड 2 to 3 hours ऑन द क्राइम सीन. तो वहाँ पे व्हाट केम इनटू माय माइंड कि यहाँ पे कोई बाइक नहीं आ सकती है, कोई गाड़ी नहीं आ सकती है, क्योंकि उसके लिए रास्ता नहीं है, तो पैदल चल के कोई आया होगा. तो व्हाट आई सजेस्टेड वाज टू टेक आउट द वोटर लिस्ट ऑफ दैट एरिया. एंड लकीली उसके 6 घंटे के अंदर वो केस वर्कआउट हो गया. And we were able to deliver the justice to that female, to the child. Secondly, आज के डेट में बड़ा इंट्रोडक्शन मेरा दिया जाता है कि जी इनकाउंटर इनकाउंटर इनकाउंटर, वो जुड़ गया है नाम से, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता. बट आई जनरली ट्राई टू अवॉइड दिस टर्म. बट किस तरह से इसकी बिगिनिंग होती है,
क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, मैं भी पहले गलत सोचता था कि पुलिस वाले, बिकॉज आई बिलोंग टू पंजाब, मुझे पता है टेररिज्म के टाइम पे क्या हुआ है, हमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी है। तो आई वॉज ऑल्सो जनरली अगेंस्ट दिस थिंग, और हमेशा पुलिस को, वर्दी को नेगेटिव रोल में पिक्चराइज करना। बट आई वुड लाइक टू नरेट वन इंसिडेंट, हो सकता है उससे आपका भी माइंड चेंज हो। दिस इंसिडेंट इज ऑफ 2 और 3 जनवरी 2018 के इसी साल के रात की बात है। मैं एक इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के एक प्रोग्राम में था न्यू ईयर पे, और उसी में इंफॉर्मेशन आती है कि सर ये इंफॉर्मेशन है, एक क्रिमिनल था who had escaped from police custody. He was having 22 murders on his name and 68 डकैतीज, including of 10 crore, 8 crore, 3 crore, 2 crore, 1 crore. तो काफ़ी ह्यूज क्रिमिनल था। वाइल्ड वेस्ट का नाम मिल गया था तब डिस्ट्रिक्ट शामली को। आई वॉज पोस्टेड इन शामली एट दैट टाइम। आई गॉट द इन्फॉर्मेशन, आई न्यू कि किस तरह का वो क्रिमिनल है। आई टॉक टू माई SHO, कैन यू हैंडल दिस? ही सेड यस सर, आई कैन हैंडल इट। आई सेड गो अहेड। वो गए, बट एट द बैक ऑफ माइंड क्योंकि था कि व्हाट काइंड ऑफ क्रिमिनल ही इज। तो 2-4 मिनट बाद मेरे दिमाग में आया कि नहीं, इसके ऊपर नहीं छोड़ना है अकेले के ऊपर। आई वेंट अलोन, आई स्टॉप्ड हिम, आई सेड आई एम कमिंग। तो हम आए, उसके बाद टीम को क्लोज किया, टीम हमारी आई, तो वी वेंट टू रेड द प्लेस टू अरेस्ट हिम। वही गांव देहात का इलाका है, घर के पास में कब्रिस्तान है, बिल्कुल अंधेरा है, रात का टाइम है, 9:30 बज चुके हैं। और घर में आने का एक जो रास्ता है वो बहुत बड़ा गेट है जिसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। दूसरा रास्ता कब्रिस्तान के साथ में दीवार है काफ़ी ऊंची, और उसकी इन्फॉर्मेशन है ऊपर के कमरे में होने की, जहाँ पे जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ पराली जो होती है वो बिछाई हुई है, उसी के ऊपर जंप करिए ऊपर से आते वक्त, और जाना है तो एक जो दीवार है, दीवार के ऊपर पैर रख के आप जाइए। तो इस तरह से उसकी डेमोग्राफी थी प्लेस की। खैर हमने टीमें बनाई, फॉर्म्ड 4 टीम्स। उसमें से एक टीम को ऊपर रेड करना था जिस कमरे में उसके होने की इन्फॉर्मेशन थी। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द कब्रिस्तान साइड, क्योंकि वो एस्केप रूट था उससे, जैसे भागता था। और जो 22 मर्डर उसने किए थे उसमें 3 मर्डर पुलिस वाले हो गए थे। तो वी न्यू व्हाट काइंड ऑफ क्रिमिनल ही इज, एंड ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट whom he is killing. तो गए, हमने रेड किया। मैं तो बिकॉज आई कैन नरेट ओनली माई स्टोरी, जो मैंने वहाँ पे फील किया। आई वॉज स्टैंडिंग देयर, और ऊपर से जो फायरिंग की आवाज़ होती है, आवाज़ आनी शुरू हुई। आवाज़ आनी शुरू होती है फायरिंग की, और इतनी देर में जो ऊपर वाला कमरा है उसकी साइड से खिड़की से एक आदमी वॉशरूम की छत पे कूदता है, और वहाँ से वो कब्रिस्तान की तरफ कूदता है। दोनों हाथों में उसके वेपन है और दोनों हाथों से फायर कर रहा है। जिस साइड पे हम 4 लोग खड़े हैं, मैं, मेरा SHO, मेरा गनर और मेरा PR, बाकी टीम पीछे है सपोर्ट के लिए। अंधेरा है, सिर्फ पिस्टल की नोक पे जो आग की हल्की सी वो दिखता है, बस वही चल रहा था। नोबडी न्यू कि कौन किसको कहाँ से लग रही है। पुलिस के लिए क्या बंदिश होती है ये फायर करते वक्त कि वो किसी नाजायज आदमी को ना लग जाए। तो वी वर वेरी कंट्रोल्ड, बट ही वाज फायरिंग लाइक एनीथिंग। इतनी देर में काफ़ी क्लोज रेंज में आ चुके थे। प्रॉब्ली जितनी दूर ये टेबल है इतनी दूर शायद वो दूरी थी उसकी when he was firing. And my SHO was standing hardly 5 or 6 feet away. All of a sudden उसके बाद में SHO ने he came very close to him और उसको कमर से जैसे पकड़ा तो वो चिल्लाया कि सर गोली लग गई। तो इतनी देर में मेरे लिए ये सोच पाना बड़ा मुश्किल था कि गोली किसको लगी है। I was just wondering किसको लगी है। वो दोनों गिरे जैसे होता है, कभी वो ऊपर आपस में चढ़ा रहा है। The other person, the criminal है, he is firing still. और इतनी देर में वो उसे छूटता है और जितनी देर में वो फायर करता है उतनी देर में माई गनर जम्प्ड ऑन हिम। और जंप किया तो वो उतनी देर में, इट वॉज हार्डली आई थिंक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जितनी देर में हमारा शूट आउट हुआ, कंप्लीट हुआ।
और वो बदमाश तो खैर मौके पे मारा गया। अब इतनी देर में वी वर जस्ट रियलाइजिंग, तो जो एसएचओ था ही स्टार्टेड वॉकिंग अवे, और जैसे होता है कि हमारी ड्रिल होती है कि फटाफट उठाओ इसको हॉस्पिटल लेकर के जाना है, इतने में आई लुक्ड एट हिम, और जैसे ही नज़र पीछे पड़ी तो जो मेरा एसएचओ था जिसने कहा था फिर गोली लग गई, उसके पीछे से दोनों पैंट की जो टांगे हैं दोनों की दोनों खून से लाल थी। तो आई वॉज जस्ट वंडरिंग, वो बड़े फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होते हैं जिसमें सारा के सारा चीज़ हो जाती है। आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि अब उसके गोली कहाँ लगी, क्योंकि अब दोनों की दोनों आगे लाल हो चुकी हैं। तो आई वॉज जस्ट थॉटफुल कि ये उसके स्पाइनल कॉर्ड में ना लग गया। आई ट्राई टू रश टूवर्ड्स हिम, इतनी देर में ऊपर से आवाज़ आती है कि सर अंकित के गोली लग गई है, दैट वाज आवर कांस्टेबल, और आवाज़ आती है कि सर अंकित के सर में गोली लग गई है। लीडर की सिचुएशन ये होती है कि वो कहाँ जाएगा, वेदर ही लुक आफ्टर दैट क्रिमिनल, वेदर ही लुक आफ्टर दैट पर्सन जो सामने घायल है, या जिसके बारे में ऊपर से बोले रहे सर में गोली लग गई। खैर हम गए, पहले उसको मैंने एक टीम को इशारा किया कि उसको हॉस्पिटल भेजा जाए, एक गाड़ी में इसको भेजा जाए। ऊपर गया तो हमारे कांस्टेबल के सर में गोली लगी हुई थी, ही वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। तीनों को हमने हॉस्पिटल भिजवाया, और हॉस्पिटल में बताया कि ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। जो क्रिमिनल था, जो हमारा कांस्टेबल था, ही वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। उन्होंने मना कर दिया यहाँ से इलाज नहीं हो पाएगा, मेरठ लेकर के जाइए। मेरठ लेकर के गए 2-3 जनवरी की रात थी तो कोहरा बहुत ज़्यादा था। मेरठ लेके गए तो वहाँ ब्लीडिंग नहीं रुक पा रही थी, ब्लड लगातार ट्रांसफ्यूज हो रहा था, और वहाँ से बताया कि फोर्टिस नोएडा लेकर के जाइए। रातों रात हम किसी भी तरह से कोहरे में 45 मिनट्स में मेरठ से नोएडा आए, और आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर 1 डे ही ऑल्सो डाइड। 2 बच्चे थे छोटे छोटे से, 26 ईयर्स की एज थी। तो खैर उसके बाद में हमने कोशिश की कि अच्छे से उसका सम्मान हो विदाई का। उसके हाँ काफ़ी गाड़ियाँ जा रही थी, तो लकीली पब्लिक ने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एक्नॉलेज किया था जो सेक्रीफाइस उसने किया था। तो पूरे रास्ते में शायद कहीं ऐसा 1 इंच का डिस्टेंस नहीं होगा जहाँ पे फूल नहीं थे। हम शामली से बागपत गए, और उसके फादर मेरी गाड़ी में बैठे थे। एक फादर जिसके 2 बेटे हैं, उसमें जो बड़ा जिम्मेदार बेटा है वो इस तरह से शहीद हो गया है। उसके फादर ने जब रास्ते में देखा तो उसके मुंह से एक चीज़ निकली कि ऐसी मौत हर किसी को नसीब नहीं होती। दिस इज पुलिस, दिस इज पुलिस। वो उस आदमी को मारते मारते अपनी जान गंवा गया, शायद जिससे उसका कोई खुद का वास्ता नहीं था, जिससे उसके परिवार का वास्ता नहीं था। सिर्फ उस आदमी के साथ लड़ा वो जो किसी और आदमी के घर पे डकैती डाल रहा था, किसी का मर्डर कर रहा था। सो दिस इज पुलिस, सो वी शुड रिस्पेक्ट पुलिस। आज की डेट में उसके बाद में काफ़ी वीडियोस भी बन गई, काफ़ी कुछ हो गया। 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, उसको याद किया जाता है, वी सेलिब्रेट पुलिस कमेमोरेशन डे। तो मैंने एक चीज़ भी व्हाट आई फेल्ट वाज के हम लोग कोई भी शहीद हुए, अब इफ़ वी टॉक अबाउट शहीद भगत सिंह, 23 ईयर्स की एज में हम अपने करियर को नहीं सोच पाते, उस आदमी अपनी ज़िंदगी को भी सोच दिया। दिस इज़ द डिफरेंस, दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ थिंकिंग। तो इसलिए हम नहीं रियलाइज़ करते, हम सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी इस तरह कुछ फेस्टिवल्स पे शहादत को जीते हैं, लेकिन हमें उस फैमिली के बारे में सोचना चाहिए जो हर त्यौहार पे शहादत को जीती है। जब दिवाली पे दिया जलाते होंगे तब उनको अपने बेटे की कमी महसूस होती होगी। जब वो बाप दशहरे पे कुछ खरीद के लाता होगा तो उसको अपने बेटे की कमी महसूस होती होगी। तो दिस इज व्हाट सैक्रिफाइस इज, दैट इज द थॉट, दैट इज द थिंकिंग। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू एंटर इनटू द न्यू पैराफर्नेलिया, ट्राई टू थिंक वाइड।
बाकी और बहुत से ऐसे किस्से हैं लाइफ में, बिकॉज लाइफ तो 33 ईयर्स की हुई है, लेकिन अगर लिखने लगो तो शायद 20 जन्म लग जाएंगे सुनने में. These were the few incidents जो I wanted to narrate. I wish you very best of luck. और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करें, अच्छा करें, ऊंचा करें, तरक्की करें. थैंक यू.